بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 35 اور اچانک حملے سے لڑکھڑا گئی، پھر ذرا سنبھل کر اسے پرے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی دیر میں سامی دوبارہ اس کے چہرے پر خراش ڈال کر خود اس سے دور ہو گئی تھی۔ ایک صوفہ پر آ کر کھڑی ہو گئی، وہاں سے وہ فرش پر آئی اور غراتی ہوئی اس عورت کے چاروں طرف چکر لگانے لگی۔ وہ دوسری بار حملے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ عورت بھی محتاط ہو کر پینترے بدل رہی تھی۔ کرنل نے پریشان ہو کر کہا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس کے تیور خطرناک ہیں، اسے پکڑو۔ اس کا حکم سنتے ہی وہاں جتنے افسر تھے سب کے سب اسے گھیرنے لگے۔ سامی نے گرفت میں آنے سے پہلے پھر ایک زبردست حملہ کیا۔ وہ عورت محتاط ہونے کے باوجود دھوکہ کھا گئی۔ اس نے بکھلا کر چیخ ماری، اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر گئے۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑا کر صوفے کے قریب ہی گر پڑی۔ اس حملے کے بعد سامی خود بھی بھوانی شنکر کی گود میں ایسے اطمینان سے آ گئی جیسے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہو۔ وہ واقعی انتقام لے چکی تھی۔ جب اس عورت نے اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹائے تو اس کی دائیں آنکھ زخمی نظر آ رہی تھی اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ سامی نے اپنے پنجے کے تیز ناخن اس کی آنکھ میں گاڑ دیے تھے۔ ایک افسر فوراً ہی اسے سہارا دے کر دوسری طرف لے گیا اور فرسٹ دوسرے کمرے میں لے گیا۔ کرنل نے مجھ سے کہا، تم نے کہا تھا یہ بلی صرف اس پر حملہ کرتی ہے جو بری نیت سے تمہیں ہاتھ لگاتا ہے، لیکن لیڈی ایکس نے تمہیں اس نیت سے ہاتھ نہیں لگایا تھا، پھر اس نے وحشیانہ انداز میں حملہ کیوں کیا؟ میں کرنل سے یہ نہ کہہ سکی کہ لیڈی ایکس اپنی غلط بیانی کے باعث اس انجام کو پہنچی ہے۔ میں یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرے بائیں کولے پر تل کا نشان ہے اور لیڈی ایکس نے میرے ایما پر جان بوجھ کر جھوٹ کہا ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر افسر نے کہا، تم خاموش کیوں ہو؟ معلوم ہوتا ہے اس بلی کی کسی خاص عادت کو ہم سے چھپا رہی ہو۔ یہ بات نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ اس نے لیڈی ایکس پر حملہ کیوں کیا، جبکہ وہ کسی ویسی نیت سے میرے قریب نہیں آئی تھی۔ ایسی حرکت اس نے پہلی بار کی ہے۔ سامی گھرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے گھرانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھ پر حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، مجھ پر حملہ کر کے اپنے شاہکار جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ لیکن کرنل نے اس کی گھراہٹ کو سمجھ لیا کہ دال میں ضرور کالا ہے۔ اس نے بھوانی شنکر سے کہا، تم اس بلی سے اسکیننگ کے ذریعے معلوم کرو کہ اس نے لیڈی ایکس پر حملہ کیوں کیا۔ بھوانی شنکر نے کرنل کے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے سامی کو صوفوں کے درمیانی میز پر کھڑا کر دیا، پھر کاغذ کا ایک پیڈ اور پینسل لے کر اس کے سامنے ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر کرنل کے سوالوں کو دہرانے لگا۔ سامی نے جواب میں اپنے اگلے دونوں پنجے اٹھائے اور سگنل کی اشارتی زبان سے کچھ کہنے لگی۔ بھوانی وہ تمام باتیں کاغذ پر نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کرنل سے کہا، یہ بلی کہتی ہے کہ لیڈی ایکس نے فائلز رپورٹ دی ہے، اس عورت کے کولے پر سیاتل موجود ہے۔ میں حیرانی سے سامی کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ہاتھ اور گردن کے مختلف زاویوں سے ایسی باتیں کرنا سیکھ گئی ہیں اور میرے اور کردار کے متعلق بھوانی شنکر کو بہت کچھ بتا سکتی تھی۔ اب مجھے اس سے زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ کرنل نے سیاتل کے بارے میں صحیح رپورٹ سن کر کہا، میں نے خود ہی لیڈی ایکس کو سمجھا دیا تھا کہ اگر اس کے بائیں کولے پر دل ہو تو وہ جان بوجھ کر رپورٹ غلط پیش کرے۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے باپ سے جھوٹ کیوں کہا گیا؟
मैं पहले नहीं जानना चाहती हूँ, अब समझ गई कि कर्नल ने लेडी एक्स को झूठ बोलने का हुक्म दिया था। मैंने इस पर ज़हर किया कि मैं पहले ही से इसके इरादों को समझती हूँ। मैंने कहा, मैं जानती हूँ आप ये नहीं चाहते थे वो अंग्रेज़ मुझे यहाँ से ले जाए। अगर मैं जाती तो बिल्ली भी मेरे साथ जाने के लिए मचल जाती। अगर उसे जबरन रोका जाता तो वो आप लोगों के इशारों पर चलने से इनकार करती। गुड, कर्नल ने मुस्कुरा कर कहा। झूठ बोलने और कत्ल करने वाली औरत मंसूबे बनाना और दूसरों के मंसूबों को समझना जानती है। मैंने कहा था आज तुम्हारी और केदार की आखिरी आजमाइश है। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों किस हद तक अपनी असलियत छुपा कर रखते हो। मैंने सजाए मौत की धमकी दी मगर तुम दोनों ने अपनी असलियत ज़ाहिर नहीं की। जान पोकर ने तुम्हें सियातिल से पहचानना चाहा, फिर भी तुम खुद को छुपाती रही। मुझे ऐसे ही जिद्दी और अटल फैसला करने वालों की ज़रूरत है जो मौत के मुंह में पहुंचकर भी अपने राज की हिफाजत करते हैं। ऐसे ही लोग सीक्रेट सर्विस के मेंबर बनते हैं और दूसरे ममालिक में जाकर अगर कभी पकड़े भी जाएं और मौत से बदतर सजाएं भी मिलें तब भी अपनी असलियत ज़ाहिर नहीं करते। मैं तुम दोनों को कानून के हवाले नहीं करूँगा। तुम और केदार इस महकमा में रहोगे, भवानी शंकर के मतहत रहकर ट्रेनिंग हासिल करोगे और 6 माह बाद इस मुल्क से बाहर एक अहम मिशन पर जाओगे। मगर याद रखो, अपने देश की वफादारी तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर किसी मरहला पर तुम में से किसी ने गद्दारी की तो वो इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैंने और केदार ने कसम खाई कि हम वफादार बनकर रहेंगे और दूसरे मुल्कों में जाकर अपने देश की भलाई के लिए काम करेंगे। सच पूछो तो मेरे दिल में न देश की मोहब्बत थी न परदेश जाने की ख्वाहिश थी, लेकिन फांसी के फंदे से बचने के लिए अब इस देश को छोड़ देना ज़रूरी हो गया था और ये हमारे लिए बेहतरीन मौका था कि सीक्रेट सर्विस वाले खुद ही हमें देश से बाहर ले जा रहे थे। मैंने सोच लिया कि किसी दूसरे मुल्क में जाकर इस बिल्ली को किसी नौजवान से नवाऊंगी। वहाँ इसका मौका नहीं मिल रहा था। हमें इमारत के अंदर घूमने फिरने की आज़ादी मिल गई मगर बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। वैसे मैं रोज़ाना 50 मंत्र पढ़ती थी ताकि सामी की आत्मा बिल्ली के जिस्म से आज़ाद ना हो सके। इस वक्त सामी ने जब ये सुना कि खुद कर्नल भी इसके बाप को धोखा देने में शरीक है, उसने लेडी एक्स को हुक्म दिया था कि उसके बाप को वो ज़ाहिर ना करे और ना सियातिल के बारे में बताए। तो इस साजिश पर वो कर्नल को घुरा कर देखने लगी। उसके घुराने का अंदाज ऐसा ही था जैसे वो इस पर हमला करने वाली हो। भवानी शंकर ने खतरे को पाप कर फौरन ही उसे गोद में उठा लिया और प्यार से उसकी मुलायम पुश्त को सहलाते हुए उसका गुस्सा ठंडा करने लगा। इजी बेबी इजी, वो उसे समझा रहा था। सामी की घुराहट धीमी पड़ गई। सबने यही समझा कि उसका गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन मैं जानती थी वो कैसी जिद्दी है। एक बार किसी दुश्मन को समझ ले तो आखिर वक्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। मैं समझ गई कि कर्नल की शामत आ गई। ये कहकर छमिया जरा देर के लिए खामोश हुई। फिर मैं रस्सियों से बंधा हुआ प्याल के बिस्तर पर यूं पड़ा था जैसे मेरे हाथ पाँव नहीं है। एक तो मैं जख्मों से चूर था, दूसरे केदार ने मुझे ऐसे मजबूती से बांध रखा था कि रस्सी का खुलना तो दूसरी बात है, इसके पेट भी ढीले नहीं हो रहे थे। मैं कपास बन के रह गया था। ये सोचकर नदामत सी हो रही थी कि सामी एक लड़की होकर हजारों हंगामों को जन्म दे रही थी, कदम कदम पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही थी और मैं मर्द होकर अपाहिज की तरह पड़ा हुआ था। क्या मर्द की तौहीन बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैं खुद को और सामी को आने वाले खतरात से नहीं बचा सकता। ये सवालात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे और मैं खुद को समझा रहा था कि ऐसे वक्त जिस्मानी कुव्वत काम नहीं आती, सिर्फ दिमागी कुव्वत से काम निकलता है और इसके लिए मुझे सब्र और तहम्मुल से किसी मौका का इंतज़ार करना होगा। सामी की दास्तान हयात भी यही बताती थी। मैं रस्सियों से बंधा हुआ था, वो मंत्रों से बिल्ली के जिस्म में कैद हो गई थी। ना मैं रस्सियों से आज़ाद हो सकता था, ना वो बिल्ली के जिस्म से रिहाई हासिल कर सकती थी। इसके बावजूद वो ज़हनी सलाहियतों से काम लेकर दुश्मनों को परेशान कर रही थी। मैंने छमिया से कहा, सामी अपने बाप के करीब आकर बिछड़ गई थी। इस बात का उसे गहरा सदमा था। इसका पता चलता तो वो इन तमाम लोगों को कच्चा चबा जाती जिन्होंने इसके बाप से झूठ कहकर उसको बेटी से जुदा कर दिया था। क्या इसने कर्नल को माफ़ कर दिया था? छमिया यूं दांत पर दांत जमाए बैठी थी, जैसे ख्याल ही ख्याल में
सामी को दांतों तले पीस रही है। फिर वो नफरत से बोली, वो दुश्मनों को माफ़ करना नहीं जानती। गरचे मैं भी इसकी दुश्मन हूँ, लेकिन मजबूरन मेरी ज़्यादतियों को बर्दाश्त कर रही है, वरना इसने लेडी एक्स और कर्नल से इंतकाम ले लिया था। कैसे? मैंने रानी से पूछा। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, शुरू में तो पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रही है और बड़ी खामोशी से कैसी चालें चल रही है। इस वक्त जबकि भवानी शंकर उसे गोद में लेकर सहला रहा था, सामी ने उसे सिग्नल दिया। भवानी शंकर ने कर्नल से कहा, ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे दूसरे कमरे में ले जाऊं या उसे छोड़ दूं? ये आप पर हमला करेगी। कर्नल ने उसे दूसरे कमरे में ले जाने की इजाज़त दे दी। मुझे भी सामी के साथ जाना पड़ा, क्योंकि वो मुझे तन्हा किसी के पास नहीं छोड़ती थी। दूसरे कमरे में आकर भवानी शंकर ने उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और कागज़ और पेंसिल लेकर सामने खड़ा हो गया। सामी अगले दोनों पंजे उठाकर सिंगिंग के जरिए उसे कुछ कहने लगी। ये तमाम बातें नोट करने के बाद मुझे और सामी को वहाँ तनहा छोड़कर वो बाहर चला गया। इस वक्त तक मैं खुशफहमी में मुब्तला थी कि वो बिल्ली के जिस्म में कैद है, ना मुझे छोड़कर जा सकती है, ना ही मुझे नुकसान पहुँचा सकती। 15 मिनट बाद भवानी शंकर 2 फौजी जवानों के साथ आया और मुझसे कहने लगा, ये बिल्ली कहती है कि इसकी एक ख्वाहिश पूरी की जाए। अगर पूरी ना की गई तो ये हमारा हुक्म मानने से इनकार कर देगी और हमारे साथ किसी भी मिशन पर जाने से इनकार कर देगी। तुम जानती हो कि ये बिल्ली हमारे लिए कितनी अहम है। हम इसकी अदना सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। वैसे तुम्हें 12 घंटे के लिए कैद कर देने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। यह कहकर उसने फौजी जवानों को इशारा किया। वो दोनों मेरे करीब आए और नैलून की डोरी से मेरे हाथ पांव बांधने लगे। मैंने परेशान होकर सामी की तरफ देखा, फिर भवानी शंकर से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे हाथ पांव बांधने से इस बिल्ली को क्या फ़ायदा हो सकता है? भवानी शंकर ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। इस बिल्ली को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? हम अपने फ़ायदे पर नज़र रखते हैं। इसकी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने में हमारा नुकसान ही क्या है? अगर तुम 12 घंटे तक इस तरह बंधी रहोगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? ये चाहती है कि तुम्हें बांध कर तुम्हारे कमरे में कैद कर दिया जाए। इस कमरे में कोई नहीं जाएगा। कमरे के बाहर दरवाजे पर लेडी एक्स पहरा देगी और तुम किसी से बात नहीं करोगी, तनाई में भी नहीं बड़बड़ाओगी। इसके लिए हम 12 घंटे तक तुम्हारा मुंह बंद कर रहे हैं। वो कहकर उसके कहने के मुताबिक एक फौजी जवान मेरे मुंह में रुमाल ठोसकर मेरे होंठों को बांध रखने के लिए पट्टी बांध रहा था। तब सामी की चाल मेरी समझ में आई। वो चाहती थी कि मेरी ज़ुबान और मेरे होंठ बांध रहे ताकि इस रोज़ 50 मरतबा मंत्र न पढ़ सकूं। एक दिन मंत्र पढ़ने का नागा होते ही इस रूह बिल्ली के जिस्म से आज़ाद हो जाती, इसलिए उसने मेरा मुंह बंद करवा दिया था। दोनों फौजी जवान मुझे उठाकर कमरे में ले गए। वहाँ मुझे बिस्तर में डाल दिया गया और सामी को मेरे पास छोड़कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद भवानी शंकर लेडी एक्स के साथ आया। सामी के सामने उसने यकीन दिलाया कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक लेडी एक्स कमरे के बाहर पहरा देगी। वहाँ मेरी मदद करने और मेरा मुंह खोलने के लिए केदार भी नहीं आ सकेगा। यह कहकर भवानी शंकर चला गया। लेडी एक्स नफरत से सामी को देख रही थी, क्योंकि उसने उसकी एक आंख जख्मी कर दी थी। इस वक्त उसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वो अपनी दूसरी आंख से सामी को घूर कर रह गई। उसका बस चलता तो उसका गला ही घोंट देती, लेकिन अफसराने अल्लाह का हुक्म था कि सामी की हर ज्यादती को बर्दाश्त किया जाए और उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया जाए। वो ज़हर बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई और मेरे कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया। सामी मेरे बिस्तर के करीब एक मेज पर बैठी मुझे घूर कर देखती रही। वो जानती थी कि हर रात 9 बजे जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए आती तो सोने से पहले वो मंत्र 50 बार पढ़ती थी। दस्तूर के मुताबिक मैंने पिछली रात 10 बजे वो मंत्र पढ़ा था। इस वक्त शाम हो रही थी। अब 4 घंटे के अंदर फिर मुझे वही मंत्र पढ़ लेना चाहिए था और मैं नहीं पढ़ सकती थी। मैंने इंतज़ार किया कि 7 बजे डिनर के लिए गान बजेगा तो लेडी एक्स मेरे लिए खाना लाएगी। खाने के लिए तो मेरा मुंह खोलना ही पड़ेगा। इस वक्त मैं लुकमे चबाने के दौरान वो मंत्र पढ़ूंगी। 7 बजे कान की आवाज़ सुनाई दी। मेरी नज़रें दरवाजे पर जम गई। मैं बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। 8 बज गया, फिर 9 बज गया, दरवाज़ा नहीं खुला। कोई मुझसे पूछने नहीं आया। सामी ने हर पहलू पर अच्छी तरह सोच लिया था। शायद
اس نے بھوانی شنکر سے کہا ہوگا کہ مجھے اس رات کھانا بھی نہیں دیا جائے گا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلایا جائے گا، میری کوئی ایسی ضرورت پوری نہ کی جائے جس سے منہ کھولنے کی ضرورت پیش آئے۔ میں سامی کو گھور کر دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی۔ کاش کہ میں دل ہی دل میں منتر پڑھ سکتی۔ پڑھنے کو تو پڑھ سکتی تھی، مگر منتر پڑھنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جن پر میں اس وقت عمل نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 24 گھنٹے پورے ہو رہے تھے۔ گرو مہاراج نے کہا تھا 24 گھنٹے میں ایک بار منتر ضرور پڑھنا ہوگا۔ انہوں نے 50 بار پڑھنے کو کہا تھا، میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ میں بے چینی سے تلملانے لگی۔ مجھے اس طرح باندھا گیا تھا، میں آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ تم میری مجبوریوں کو سمجھ سکتے ہو کیونکہ تم بھی اس وقت رسیوں میں بندھے ہوئے ہو۔